اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں بہت قیمتی اور امپورٹنٹ جو باتیں ہیں اسی کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو یہاں مجھے موضوع دیا گیا ہے رزق حلال کی اہمیت، اگر حلال و حرام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 10 منٹ 15 منٹ یہ کوئی ٹائم نہیں ہوا، 50 منٹ کم از کم اس کے لیے 1.5-2 گھنٹہ کا ٹائم چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کچھ دوسرے طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ حرام کھانے والوں کا انجام کیا ہے اور حلال کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بدلہ دیے ہیں، کیا بدلہ ہمیں ملے گا، کیا نتیجہ ملے گا۔ دنیا میں سب سے قیمتی دولت کون ہے؟ وہ نیک بیوی ہے۔ الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس عنوان میں نے اس حدیث کو اس لیے سامنے لائے کہ اگر ہماری اور آپ کی بیوی نیک ہو تو انشاءاللہ آپ حلال طریقے سے کمائی کریں گے، حلال رزق کھائیں گے اور حرام سے بچیں گے۔ اب یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بیوی کو کیسے نیک بتا رہے ہیں، بیوی کو ہم کیسے نیک بنا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کی ابھی ہوئی نہیں اس لیے آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو بیوی نیک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بیوی دیندار اور نیک ہو۔ اگر آپ کے قسمت میں دیندار آ جائیں، نیک بیوی آ جائیں تو آپ سمجھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ کیسے کامیاب ہے؟ آؤ میں مختصر سا واقعات اور اوقات میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے جاؤ بازار جاؤ اور گوشت خرید کر لاؤ، آپ جیسے بازار جائیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مذہب کے لوگوں سے گوشت خرید لیں گے اور اپنے بیوی کے سامنے لا کر رکھیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو، بیوی اگر دیندار ہو، بیوی اگر ایماندار ہو، بیوی اگر قرآن و حدیث کو جاننے والی ہو، وہ بیوی آپ سے پوچھیں گے یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ جواب دیں گے میں نے مشرک کے دکان سے خرید کر لایا، میں نے کافروں کی دکان سے گوشت خرید کر لایا۔ وہ آپ کی بیوی کہے گی جاؤ اس کو ریجیکٹ کرو، یہ گوشت تمہارا نہیں چلے گا، یہ گوشت حرام ہے، یہ گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر یہ وضاحت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل بھی کر دی کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں، اے بندو، ہم نے تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر خون حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر ان حلال جانور کا بھی گوشت حرام کر دیا ہے جن کو ذبح کرتے وقت، چھری چلائے جانے کے وقت اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے مٹن کھانے والے، ہم اور آپ مشرک کی دکان سے چکن کھانے والے، ذرا تصور کرو اور اپنی ضمیروں میں ذرا جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے کتنے گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے برائیاں کر رہے ہیں، ہم کتنے کتنے حرام، حالانکہ ہمارا خون پسینے کی کمائی ہے، ہم اپنے خون پسینے اور حلال پیسے سے گوشت کو خرید کر لاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن یہاں اس گوشت کو جب کاٹا گیا، اس جانور کو ذبح جب کیا گیا تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ غیر کا نام لیا گیا۔ اس لیے وہ گوشت چاہے بکری کا ہو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے کوئی بھی حلال جانور کا ہو، اگر اللہ کے نام سے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اگر اس کو کاٹا نہ جائے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بیوی آپ کو کہیں گے جاؤ اس گوشت کو ریجیکٹ کرو، وہ گوشت حلال نہیں ہے۔ آپ پھر بازار جائیں گے اور پھر کسی جگہ سے دکان سے گوشت خرید کر لائیں گے، بیوی اگر نیک کار ہو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ گوشت تم نے کہاں سے خرید کر لایا؟ آپ کہیں گے فلاں جگہ میں ایک دکان ہے، وہاں آج گوشت بالکل سستے میں دے رہا ہے، سستے میں دے رہا ہے، 100 روپے کلو والا گوشت 50 روپے میں دے رہا ہے۔ کیسے؟ آپ کے یہاں ٹرین چلتی ہے نا،
कोई ट्रेन चली और कोई जानवर कट गए, और जैसे कटे अगर उसका कोई जिस्म काट जाए और फिर भी बावजूद वो जानवर जिंदा रहे, मसलन कोई पैर उसके काट गए और उसको लाकर दुकानदार सस्ते में बेच रहा है और आप उसको सस्ते में खरीद कर लाते हैं, एक बात याद रखिएगा, वो जानवर अगर जिंदा है और अगर आप उस कटे हुए पैर का गोश्त खा रहे हैं, ये गोश्त आपके लिए हलाल नहीं है बल्कि हराम है। मा खुतिया मिनल बहीमा, मेरे प्यारे साथियों, जो जानवर का कोई पैर कोई टांग काट जाए और आप उसको खाने की कोशिश करेंगे और खाना चाहेंगे, वो आपके लिए हलाल नहीं होंगे बल्कि हराम होंगे। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप बाजार जाएंगे और किसी के माल चुरा कर कोई सामान खरीद कर लाएंगे और आपकी बीवी आपसे कहेंगे कि तुमने इतना रुपया कहाँ से लाया, तुमने ये कमाई करके कहाँ से लाए, तुम्हारे पास तो इतना दिरहम और दिनार नहीं थे, बावजूद तुमने इतने सारे सामान कहाँ से लाए। वो कहेंगे मैंने फला आदमी का फला आदमी की बैग लूटी, मैंने फला आदमी को कत्ल कर दिया, मैंने फला मुसलमान को कत्ल किया, मैंने फला मुसलमान के माल को दगा दिया, मैंने फला मुसलमान के माल को चोरी किया, मैंने फला मुसलमान के माल को हड़पा। वो बीवी कहेंगे जाओ जाओ, मैं ये गोश्त रिजेक्ट करती हूँ, ये गोश्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं, ये सामान तुम्हारे लिए हलाल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज्जतुल विदा के अंदर 1,44,000 या 1,00,000 प्लस सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया, आए लोगों, आए मेरे सहाबियों, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का खून हराम है, तुम्हारे ऊपर एक मुसलमान का माल हराम है, तुम्हारे ऊपर किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना और खेलना हराम है। कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्जुहु, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का माल हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का खून हराम है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इज्जत व आबरू पर उछालना हराम है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वो बीवी अगर आपकी नेककार है, वो बीवी आपकी अगर दीनदार है, वो कहेंगे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी इन हराम कमाई को खाने वाली नहीं हूँ, वो ये कहेंगी कि मैं तुम्हारी हराम कमाई खाने वाली नहीं हूँ। मेरे प्यारे साथियों, फिर आप जाएंगे और हलाल कमाई करने की कोशिश करेंगे लेकिन कमाई नहीं कर पाएंगे और मांग कर लेकर आएंगे, मांग कर लेकर आएंगे। आपके हाथ है, पैर है, दोनों हाथ मजबूत है, दोनों पैर मजबूत है, बावजूद आप मांग कर खाएंगे, गोया कि आप फकीरी काम करेंगे। बीवी कहेंगी कि तुम्हारे हाथ है, पैर है, बावजूद तुमने मांग कर खाया, तुमने मांग कर लेके आए, तुम्हारा ये माल मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह फरमाता है भीख मांगने वालों, कयामत के दिन उनके चेहरे पर निशान पड़े होंगे, जिनके पास हाथ है, जिनके पास पैर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन उनके निशान उनके कपाल में, उनके सिर में कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब हम एहसास करें, अब हम अपने ज़मीरों में झांक कर देखें कि हम भीख मांगने वाले कितने हैं। हाथ है, पैर है, बावजूद भीख मांगते हैं। और इससे मुराद जहेज है, जहेज। इसके बारे में हमें लोग ये बताते हैं कि अभी खुलकर तकरीर मत कीजिए, जब शादी हो जाएगी तब पता लगेगा कि ईमान कितना मजबूत है, तब इसके बारे में खुल के तकरीर कीजिए। ये बात याद रखिए, ये भी फ़कीरी हालत में आप गोया के भीख मांग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक हदीस के अंदर है जो मैंने आपके सामने बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर गए, आपने अत्तलातु फिल जन्ना, जन्नत के अंदर झांका, जन्नत में झांक कर देखा, फराइतु अक्सर लिअहलिल फुकारा, तो आपने सबसे ज़्यादा किसको पाया? फ़कीरों को पाया, मिस्कीन को पाया, गुरबा को पाया। इसका क्या मतलब है? जो मांगे वो फ़कीर है, मांगने वाले फ़कीर है नहीं। जिनकी हालात अल्लाह ने ख़राब कर दी, जिनकी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने ख़राब कर दी, जिनकी स्थिति अल्लाह ने ख़राब कर दी, वो फ़कीर है, मांगने वाला फ़कीर नहीं है। इसका मतलब ही है जिसको जो चाहे मांगे, जो चाहे हाथ फैलाए, वो हाथ फैलाकर अपने आप को फ़कीर नहीं कह सकते हैं। और इस हदीस के तहत जन्नत के अंदर उनकी तादाद ज़्यादा नहीं हो सकते। आपने किसको देखा? जो फ़कीरी हालात में इस दुनिया से गुजरे हैं, जो फ़कीरी हालात में इस दुनिया से गए हैं, उसको अल्लाह के नबी ने देखा। जन्नत के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद अगर किसी की है वो फ़कीरों की है। मेरे प्यारे साथियों, और
जहन्नम के अंदर अल्लाह के नबी ने जिसको सबसे ज्यादा देखा, फराइतु अक्सरा लिअहलिहन निसा, सबसे ज्यादा आपने औरतों को देखा। मैं इन्हीं दो हदीसों की दो जुमले की तशरीह करके मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा। एक फ़कीरी हालत और एक औरत के सिलसिले में। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल कमाइए, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ने पैर दिए हैं, आप हलाल तरीके से कमाइए। ये आप दूसरों के माल चुरा कर और दूसरों के माल हड़प कर कब तक खाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई आदमी उठ जाए और खड़े होकर कहे कि मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं, आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए और अपने परिवार के अंदर बांट दीजिए, अपने बीवी को खुश कर दीजिए, वो माल से आपकी बीवी तो खुश हो जाएगी, आपका बच्चा तो खुश हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, वही माल अगर गरीबों को दे दिया जाए, वही माल अगर मिस्किनों को दे दिया जाए, कम से कम उसका भी चूल्हा संभाल जाएगा। इसलिए आप ऐसा नहीं करना, भीख मांग कर मत खाइएगा और हमेशा सोचिएगा कि हम हलाल कमाई खाएंगे। अब आइए मैं मंजर आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हिजरत कर रहे हैं। हिजरत करने के बाद सबसे पहला कदम आप मदीने की सरजमीन पर रखे, हिजरत करके मदीना गए, आपके साथ आपका सहाबा भी गए। हिजरत जब किए तो कोई सामान आपके साथ नहीं था, जिस तरह हम और आप हिजरत कर रहे हैं। अगर कोई कटिहार से किशनगंज हिजरत करके जाए, मेरे प्यारे साथियों, उनके पास ट्रक में माल लाता हुआ चला जाएगा, सारे सामान समेत हिजरत करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम जब हिजरत की तो कोई माल उनके साथ नहीं था, कोई दौलत उनके साथ नहीं थी। बगैर माल के, बगैर असबाब के, बगैर दौलत के आपने हिजरत किए। खाने के लिए कोई सामान नहीं था, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, बगैर सामान के आपने हिजरत किए। अल्लाह के नबी मदीने जाने के अंदर, मदीने के अंदर जो अंसार थे और मक्के से जो हिजरत किए, गोया को सबको आपस में जमा कर दिए और सबको भाईचारा कायम कर रहा है। मीडिया वालों, अगर ये तकरीर तुम्हारे कानों पर पहुंचे, अगर तुम्हारे पास पहुंचे तो लिखो भाईचारा की मिसाल कितनी बड़ी है। ये हमें और आपको कितना ये वाकया सबक देता है, अल्लाह के नबी ने कितना भाईचारा कायम किया है। मदीने के अंसारों के दरमियान और मक्के के मुहाजिरों के दरमियान भाईचारा कैसे कायम किया। आज ये कहता हूं कि मुसलमान को देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री में भेजा जाएगा, लेकिन जो दूसरे स्टेट से आए, दूसरे मुल्क से आए, उसको इस देश में जगह दी जाएगी। लेकिन जो इस देश में पले, जो इस देश में बढ़े, जो इस देश के नागरिक कहलाने के हक रखता है, आप उन्हीं को जगह नहीं देंगे। एक बात याद रखना, जो अपने को नहीं पहचाना दूसरों को कैसे पहचान सकता है। मेरे प्यारे साथियों, भाईचारा की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस वाक़े से कैसे दी है। आओ, अल्लाह के नबी अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कर रहा है, हाथ पे हाथ रखकर भाईचारा कायम कर रहा है। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, मुहाजिर है, हिजरत करके मदीना गए हैं और मदीने के एक अंसार जिसका नाम साद बिन रबी है, उनके हाथ पे उनके हाथ रखते हैं और उनसे उनके बैत, उनसे उनका सुलह कराते हैं, उनसे उनके भाईचारा कायम कराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये है उखवत और हमदर्दी। और जब भाईचारा कायम कर दिए तो कैसा रिजल्ट आया, कैसा नतीजा आया, कैसा इनाम आया। आज कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, कैसा इनाम आया, कैसा रिजल्ट आया। लेकिन वहां भी भाईचारा कायम किया तो कैसा रिजल्ट आया, कैसा नतीजा आया। देखिए, जब भाईचारा कायम हो गए, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम हो गए, वो अंसार खड़े होता है और कहता है, फ़क़ाल अली अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहमान, आप हिजरत करके आए हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, आपके पास सोने के लिए, बिछाने के लिए चादर नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, आपके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, वो कासिमू का मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं माली निस्फैन, अपने मालों को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। 2 बाग है, एक बाग तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ। यहाँ तक के वो उस सब बीजू का 2 बीबी है,
है एक बीवी को मैं तलाक दे देता हूँ, तुम उसको पसंद कर लो और अपनी जौजियत में शामिल कर लो। लेकिन ऐ मेरे प्यारे साथियों, और भीख मांग कर खाने वालों, दूसरों के माल पर लालच करने वालों, वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़ा होता है और कहता है अल्लाह क़ाल बारकल्लाहु फीका मालिका क़ाल बारकल्लाहु मालुका व औलादुका। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे और तुम्हारी आलो अयाल में बरकत दे, तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारी बीबी में बरकत दे, तुम्हारे खाने में बरकत दे, तुम्हारे सामान में बरकत दे। बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका। ऐ लोगों, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सामान को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाग को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़मीन को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे दुल्लूनी अलस्सूक, बाज़ार का रास्ता दिखाओ। कहाँ बाज़ार है? ये काढ़ा गोला का रास्ता दिखाओ, कटियार का रास्ता दिखाओ। हम बाज़ार जाएंगे, तिजारत करेंगे और तिजारत से डबल मुनाफा करेंगे, तिजारत और हलाल की कमाई करेंगे, उससे हमारे पास माल होंगे, उससे हमारे पास दौलत होंगे। तुम्हारे इन माल को मैं लेने वाला नहीं हूँ। उसने कहा मेरे प्यारे साथियों, जब भाईचारा कायम हो गए, उसने कहा मैं एक बीवी को तुम्हारे हक में दे देता हूँ, एक बाग को तुम्हारे हक में दे देता हूँ। लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारी बीवी को लेने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाग को लेने वाला नहीं हूँ, बल्कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। मैं तिजारत करूँगा, हलाल की कमाई करूँगा, खून और पसीने की कमाई करूँगा, जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट काट कर लाऊंगा और बाजारों में फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, आगे बताया जाता है उसको एक बाजार का रास्ता दिखाया गया, जिस बाजार का नाम कैरुका है, वो बाजार का रास्ता दिखाया और वो बाजार गए और सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट किए, तिजारत स्टार्ट किया, वो घी और पनीर से। और फिर उसके बाद जितना मुनाफा हुआ, मेरे प्यारे साथियों, हदीस वाले लिखते हैं कि वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ पूरे मदीने में अमीर बन गए, पूरे मदीने में दौलत वाले बन गए। और दौलत बनने के बाद जब शादी किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म में, उनके चेहरे में, उनके बदन में मेहंदी का निशान देखा, जर्दी का निशान देखा। आपने पूछा है अब्दुर्रहमान क्या शादी हो गई? ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली। यहाँ देखिए अल्लाह के नबी भाईचारा कायम किए, मदीने के अंदर अल्लाह के नबी भी है और अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी है, लेकिन शादी हो रही है, अल्लाह के नबी को खबर नहीं। हमारे यहाँ अगर बड़े बेटे को, बड़े बाप के बेटे को, बड़े लाट के बेटे को अगर खबर ना हो या खबर देने में भी अगर ताखीर कर दें, तो आप उसका चेहरा देखिएगा कैसा मुरझा जाएगा, ऐसा लगेगा कि सुर्खी माइल की तरह हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा आए अब्दुर्रहमान ये निशान किस चीज की है? उसने कहा मैंने एक अंसार की औरत से शादी कर ली। आपने पूछा महर में क्या दिया हो? यहाँ पूछे जाएंगे जहेज में क्या मिला। आपने पूछा महर में क्या दियो? उसने कहा खजूर के गुठली के बराबर हमने सोना दिए हैं। माल इतना हो गया, दौलत इतनी हो गई, शर्त है कि आप हलाल तरीके से कमाइए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद फिर आपने आखिरी जुमला कहा औलिम बिशा, वलीमा करो वलाउ बिशा, औलिम वलीमा करो वलाउ बिशा, अगरचे एक ही बकरी हो। ये तरीके बताए गए हैं, महर दो, वलीमा करो, इसके अलावा कोई और बातें इस हदीस के अंदर नहीं है। तफसीर वाले, हदीस वाले लिखते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास इतना माल हुआ, इतनी दौलत हुई, इतना माल हुआ, माल की फरावनी में कभी घमंड नहीं किए। लेकिन हमारे पास अगर बिल्डिंग बन जाए, हम कितने फख्र करने वाले बन जाते हैं। माल की फरावनी इतनी हुई, इतने माल हुए, इतने ज़मीन व जायदाद हुए। हदीस में लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह से ज़्यादा डरने लगे और खौफ खाने लगे। जब उनके सामने खाना लाया जाता, जब उनको खाना पेश किया जाता, वो खाना खाने के वक्त अल्लाह से डरा करते थे, आय अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माल की बदौलत, मेरे दौलत की बदौलत मुझे इस दुनिया में ही बदला दे दिया जाए और क़यामत में मुझे सवाब से बदले से महरूम कर दिया जाए। और कभी कभी मसअब इब्न उमैर को याद करते थे। वो मसअब इब्न उमैर जो इस्लाम लाने से पहले जो हमेशा अगर जोहर में कोई कपड़ा पहना तो असर के बाद दूसरा कपड़ा चेंज कर लिया करते थे, फिर असर के बाद जो कपड़ा पहना मगरिब के वक्त कपड़ा चेंज कर लिया करते थे।
ہمیشہ دوسرے کپڑے پہنا کرتے تھے، لیکن جب اسلام لایا ان کی غریبی حالت ایسی رہی، غریبی حالت تو نہیں لیکن اپنے جسم میں کپڑے نہیں اوڑھ رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے، اور جب آخری موت ہوئی آخری وقت جب ان کا جنازہ اٹھنے لگا، میرے پیارے ساتھیوں کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا کپڑا کفن کا لایا گیا، اگر سر چھپا رہا ہے تو پیر ننگے ہو رہے ہیں، اگر پیر میں وہ کپڑا ڈالا جاتا ہے تو سر نہیں سر کھل جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں عبد الرحمن ابن عوف اس چیز کو یاد کیا کرتے تھے اور اللہ سے زیادہ ڈرا کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ ہیں ہمیشہ دوسروں کو گھمنڈ دکھا کر چلا کرتے ہیں، ہمارے پاس دولت آ جائے ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ میرے پیارے ساتھیوں، جو دولت کما کر اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، قیامت کے دن تمہارا حشر و نشر کیا ہوگا۔ سنو، اس دنیا کے اندر اگر زندگی میں آپ نے پوری زندگی تکلیف ہی تکلیف سے گزاری، پوری زندگی آپ نے غریبی حالت میں زندگی گزاری، پوری زندگی میں آپ نے اگر کبھی چین سے کوئی کھانا نہیں ملا، چین سے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، آپ کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان بے چین انسانوں کو، ان غریب اور لاچار انسانوں کو جنت میں گوتا دیا جائے گا، جنت کے اندر اس کو ایک مرتبہ داخل کیا جائے گا، جنت کی نعمتیں دے کر اس دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہوئی، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی بے چینی اور بے قراری آئے، ان تمام چیزوں کو ایک بار جنت میں گوتا پانے سے، ایک بار ان کو گوتا دیے جانے سے ان تمام مصائب اور تمام تکالیفوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس دنیا میں جو ان تمام عیش و عشرت کرنے والے، بڑے سکون کے ساتھ رہنے والے، بڑے چین کے ساتھ کھانے والے، بڑے عیاشی کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ نے بہت دے کر رکھا ہے، یہ شکریہ اور نعمت تو ادا کر سکتے ہو، لیکن فخر کی زندگی گزار کر مال آنے کے بعد گھمنڈی کر کے مال کو فضول راستے میں خرچ کرنے والے، اگر سنو دنیا میں زندگی بھر عیش و عشرت کرنے میں پوری زندگی گزار دی، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو ایک بار جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس دنیا کی تمام سکون کو بھول جائیں گے، اس دنیا کی تمام سوکھ چین اور اس دنیا کی اطمینان والی زندگی کو بھول جائیں گے۔ اس لیے اب ہم حلال کمائی کرنے کی کوشش کیجئے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ حلال کھائیں گے، ہمیشہ سوچئے کہ حرام نہیں کھائیں گے، اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ غریبوں کی مدد کریں گے، لیکن غریبوں کے مال لوٹنے والے کچھ لوگ ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اے لوگوں، قرآن تو چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں بہت طریقے مال دیا ہے، جو پاکیزہ مال ہے، جو پاکیزہ رزق ہے انہی کو کھاؤ، حرام کے پیچھے نہ پڑو، حلال کے پیچھے دوڑو، اگرچہ تمہیں بکریاں ہی چرانا پڑے، اگرچہ تمہیں جنگلوں میں لکڑیاں ہی کاٹنا پڑے، یہ حلال کمائی کر کے کھاؤ، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہیں ہم بکریاں چرانے جائیں گے، سماج کی نظر میں ہماری عزت چلی جائے گی، لیکن وہ رب تو چیخ کر کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا عزت دوں گا، جسے چاہوں گا ذلیل کروں گا۔ انسان کی نظر میں آپ بالکل انسان کی نظر میں عزت والے نہ بنیے، اللہ کی نظر میں عزت بنیے۔ آؤ اس دنیا کے مال وہ دولت کے چکر میں پڑنے والوں، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا گزر مدینے کے قوالی بازار سے ہوا، مدینے کی قالیہ بازار سے ہوا، میرے ساتھ صحابی بھی تھے اور میں صحابی کے بغل میں چلا کرتے تھے، اتنے میں نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہے، اس کے اندر عیب بھی ہے، مری ہوئی بکری ہے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا اے صحابیوں، تم میں سے کون چاہتا ہے یہ مری ہوئی بکری خرید کر لے لے، 1 درہم میں خرید کر لے لے، 1 روپے میں خرید کر لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اور اگر یہ لو کانا حیّن فیہ عیبن، یہ زندہ بھی ہوتے اس کے اندر عیب ہے، کون اس کو روپے میں خریدے گا؟ حالانکہ یہ ابھی تو مردار ہے، حالانکہ یہ تو مری ہوئی ہے، اور مری ہوئی بکری کو ہم اگر فری میں مفت میں ہمیں دے دی جائیں تو ہم اس مری ہوئی بکری کو نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ ان ھذا علیکم، اے میرے پیارے
सहाबा सुनो, ये मरी हुई बकरी से भी इस दुनिया की जिंदगी जलील है, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इस दुनिया में तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रहना है। जिस तरह मरी हुई बकरी की कोई अहमियत नहीं, उसी तरह इस दुनिया में इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं। तुम्हें इस दुनिया से जाना है, तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। भले तुम्हें हराम तरीके से मालों को खरीद कर, हराम तरीके से मालों को जमा करके अपनी औलाद को देकर जाने वाले, अपने बीवी के लिए छोड़ने वाले, अपने अहल अयाल के लिए छोड़ने वाले, जब क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा तो तुम भी चीख कर कहोगे, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी यौमिइज़िन बिबनी। आय अल्लाह, दुनिया में हमने इन बेटों की वजह से हराम कमाई की थी, इन बेटों की वजह से हराम का माल कमाया, इन बेटों की वजह से हराम की दौलत कमाई। आय अल्लाह, आज मैं जहन्नम जब डाला जाएगा क़यामत के दिन वो कहेगा, आय अल्लाह, आज मुझे जन्नत मिलने के लिए अगर आप मुझे जन्नत देंगे तो अब मैं अपने बेटों को तेरे दरबार में जहन्नम के लिए डाल देता हूँ, मैं अपनी बीवी को भी फिदिये में डाल देता हूँ, अपने बच्चों को भी डाल देता हूँ, यहाँ तक के वमन फिल अर्ज़ जमीया, दुनिया के अंदर तमाम इंसानों को अगर जहन्नम में डाल दिए जाए और मुझे जन्नत मिल जाए तो मुझे मंजूर है। हम और आप बेटे के लिए क्या ना क्या करते हैं। हम ये सोचते हैं हराम कमाई करके अपने बेटों को देंगे, बेटा हमारा कया जब तक बचे रहेगा, जब तक हयात रहेंगे उनके, जब तक वो जिंदा रहेंगे हमारा नाम करते रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब अल्लाह आपको जहन्नम में डालेगा तो आप कहेंगे, या अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे जन्नत दे दे। आप गौर कीजिए कि हराम कमाई करके अपनी औलादों के लिए जमा करने वाले आप दौलत और माल नहीं जमा कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं? जहन्नम की आग जमा कर रहे हैं। अरे लोगों सुनो, दुनिया की कोई अहमियत नहीं, दुनिया की कोई कीमत नहीं। जैसे कि मुसाफिर इस दुनिया के अंदर आता है, जैसे कि मुसाफिर चलता है, वैसे हम और आप मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हैं। एक मुसाफिर यहाँ से चलते हुए कटिहार तक जाता है, फिर कटिहार में जब थक जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए सिस्ताता है। जैसे हम और आप किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, उसके बाद फिर किशनगंज की धरती पर सफर करना शुरू कर देते हैं। वैसे हम और आप इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आए हैं। हमें और आपको इस दुनिया में रहना ज्यादा दिन नहीं है, हम और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी तो अब्दुल्ला इब्न उमर के कांधे पकड़ कर कहा था, आए अब्दुल्ला इब्न उमर, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब, इस दुनिया में वैसे रहो जैसे कि मुसाफिर आदमी रहता है, जैसे कि अजनबी आदमी रहता है। इस दुनिया में वैसे ही रहो, इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं, इस दुनिया में तुम हमेशा के लिए नहीं आए हो, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। और हाँ सुनो, इज़ाम शहीदा फला तंतज़िर सबा, जब शाम हो जाए, जब सूरज ढल जाए, जब तुम बिस्तर में सोने के लिए चले जाओ तो हिसाब किताब कर लिया करो। हमने दिन में कितनी गालियाँ दी, हमने दिन में कितने उलमाओं को बदनाम किए, हमने दिन में कितनी बुराइयाँ की, हमारी जुबान ने कितनी खताएँ की, हमारी जुबान ने कितनी गलतियाँ की। आप ये हिसाब कर लीजिए और सुबह का इंतजार ना कीजिए, अल्लाह हमें सुबह तक जिंदा रखेगा या नहीं, आप सुबह का इंतजार ना कीजिए। और जब इजाज़ बाता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो आप ये हिसाब कर लीजिए हमने रात भर कितनी गलतियां की, हमने रात भर कितनी बुराइयां की। और आप बिल्कुल शाम का इंतजार ना कीजिए, हो सकता है आप शाम तक मुर्दों में लिखे जाएंगे। इंसान जब शाम के वक्त सोने जाए ये हिसाब कर ले कि हमने दिन में कितनी गलतियां की, और ये ना सोचे कि सुबह का सूरज हमें देखने मिले। जब सुबह हो जाए तो आप शाम का इंतजार ना करें, और ये ना सोचें कि हमें शाम तक हमें इस दुनिया में रखे जाएं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। आप हलाल कमाई पर ज़्यादा तवज्जो दें और हराम कमाई से बचिए। और हराम कमाई से बचने के लिए इसमें अल्लाह के नबी ने कितनी सख्त वईद जुमले अता किए हैं। लाना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबैहि व क़ालहुम सवा। जिस तरह हराम कमाई करने वाले मेरे प्यारे साथियों, अगर उसकी गवाही में कोई शामिल होता है, अगर कोई सूद खाता है और उसकी गवाही में कोई शामिल है, कोई लिखने वाला है, कोई गवाही देने वाला है, मेरे प्यारे साथियों सबका गुनाह बराबर है। वक़ालहुम सवा। लेकिन अच्छाई कोई अगर करता है आप उसके साथ ज़्यादा देने वाले नहीं होंगे, अच्छाई के साथ देने वाला ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अच्छाई के साथ देने वाले से हमें ज़्यादा फ़ायदा होंगे। हम उलमा के पास बैठेंगे, हमें इसमें नेकियां हासिल होगी, हम दीनी मजलिस में बैठेंगे, हमें नेकियां मिलेगी, हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे। लेकिन हम बुरे कामों
کاموں میں لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے, کوئی کہا تھا کہ اگر آپ برائی بھی کرتے ہیں تو تنہائی میں کیجئے, کیوں ایسا نہ ہو کہ پکڑے جاؤ, اللہ اگر تمہارا ٹھکانہ جنت کر دے. اور وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے گناہ کیا تھا, وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے بیڑی پی تھی, وہ آدمی جس کے سامنے آپ نے نشے پان کیے تھے, وہ آدمی اللہ کے پاس جا کر کہے گا, اے اللہ آپ اس کو جنت کیوں دے رہے ہیں؟ یا اللہ اس نے میرے سامنے دنیا میں برائی کی تھی, آپ اس کو جنت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے اس نے کہا تھا کہ برائی ابھی اگر کرنا ہے تو تنہائی میں کیجئے. اس کا مطلب میں یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ آپ تنہائی میں برائی کریں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک اصول بتائے ہیں, آئیے میں آپ کو حلال کمائی کی طرف لے کر چلتا ہوں اور ایک دو واقعات سے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. حلال کمائی کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اس دنیا میں اللہ نے مختلف جانور پیدا کیے ہیں اور کسی جانور کے گوشت آپ کے لیے حلال کیے, کسی جانور کا دودھ آپ کے لیے حلال کیے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, جو لوگ غلط فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں اتنے نام کا ذکر ہے, قرآن میں کوے کے بارے میں کہاں ہے, قرآن میں کبوتر کے بارے میں کہاں ہے, صاف کلیئر حدیث میں یہ بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان جانور کا نام جن کا قرآن میں تذکرہ ہو گیا آپ اس کو حلال طریقے سے کھائیے. لیکن ان جانور کے بھی نام لیے گئے ہیں جو حدیث اور قرآن میں نہیں ہے, لیکن ان کی علامت بتائے گئے ہیں کہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے, اور جو اپنے سامنے والے تو دانت سے کسی کو چیر پھاڑ کر کھاتا ہے وہ جانور آپ کے لیے حرام ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, آپ یہ احتیاط کیجئے گا. اور کچھ لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کتے کھانے کے بارے میں کیا ہے, کتا کھایا جائے گا یا نہیں. کتا کھانے کی بات تو چھوڑیے, کتے کی کمائی بھی آپ نے حرام کر دی ہے. آپ نے فرمایا کہ فی اشیاء وحرمھا ثمن القلب, کتے تو چھوڑیے بہت سی چیزیں ہم نے حرام کر دی, کتے کی کمائی بھی آپ کے اوپر حرام ہے. کتے کی گوشت کی بات کر رہے ہیں, ایک کتا ایک ایسا جانور ہے, آپ تجربہ کیجئے, آپ بہت سے جانوروں کو تجربہ کیجئے, بہت سے جانور بالکل آپ کو بھی اچھے لگیں گے حالانکہ وہ بھی کچھ حرام ہوتے ہیں. لیکن کتے کے بارے میں عقیدہ رکھیے, کتا جب زمین میں چلے گا اپنے منہ کو زمین میں رگڑتا ہوا چلے گا, اپنے منہ کو زمین میں رگڑتا ہوا پاخانہ سے کراس کرے گا, پاخانہ کو چھوتا ہوا جائے گا. اور کتا جب اپنے منہ اڑائیں گے, جب کتا اپنے منڈی ہلائیں گے تو ان کی جو منہ ہوتے ہیں وہ ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ کسی جسم کے بدن پہ نہیں پڑیں گے بلکہ کس جگہ پہ پڑیں گے, شرمگاہ پر پڑیں گے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا جس گھر میں کتے ہو اس گھر میں فرشتے, رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. جس گھر میں تسبیح ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کتے پالنا کیسے ہیں. کچھ لوگ, اور ایک حدیث میں ہے کہ کتا مجبوری میں پالا جا سکتا ہے, لیکن جن کے پاس مجبوری ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, ہماری ماں بہنیں اس مسئلہ کو نوٹ کر لیجئے, ہماری ماں بہنوں کو بلی سے دشمنی ہے. بلی اگر آ جائے برتن میں منہ ڈال دے اس کو مار کے بھگائیں گے. بلی برتن میں منہ ڈال دے اس کو جھوٹا سمجھیں گے. لیکن کتے کے بارے میں کیا ہے, جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے, اذا ولغ فیہ القلب طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ القلب ان یغسلہ 7 مرات اولہن بالتراب. جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے آپ اس کو 7 مرتبہ دھوئیے. میری ماؤں بہنوں, آپ کو 7 مرتبہ اس برتن کو دھو کر صاف کرنا ہوگی, تب وہ برتن آپ کے لیے پاک ہوں گے. اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھوئے جائیں. لیکن بلی کے بارے میں ہماری ماں بہنوں کا کیا خیال ہے؟ بلی کو پتہ نہیں وہ کتنے خراب سمجھتے ہیں, حالانکہ بلی کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث موجود ہے کہ انہا لیست بنجس, بلی ناپاک جانور نہیں ہے, ان میں کوئی نجس نہیں ہے, ان میں کوئی ناپاکی نہیں ہے. انما ہیا من الطوافین علیکم, بلکہ وہ تو گھریلو جانور ہے, وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہا کرتے ہیں. اس لیے بلی اگر کسی پانی میں منہ ڈال دے, کسی وضو کے برتن میں بھی منہ ڈال دے, اس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں. اب آئیے حلال کمائی کرنے والے, اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رخصت ہوں گا. حلال کمائی کرنے والے اور حرام کمائی کرنے والے سنیے, اگر آپ چاہیں گے کہ حرام کمائی کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ حلال کمائی کریں گے, حلال کمائی کرنے والے اگر آپ حلال کمائی کر کے بھی حلال راستے میں استعمال نہیں کریں گے, اگر آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے, اگر آپ مسجد میں نہیں دیں گے, اگر آپ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے, اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے, اگر آپ اس کو زکوٰۃ میں نہیں دیں گے, حلال راستے میں خرچ نہیں کریں گے. سنیے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک
एक वाक़ये में नक्शा खींचा है। एक ऐसा ज़माना गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा ज़माना गुजरा है, वहाँ पर एक बाग का किस्सा मशहूर है। बाग का किस्सा मशहूर है। हुआ ये था कि एक बाग था, उसमें जो फल वगैरह हुआ करते थे, उसका मालिक क्या करते थे, उसका मालिक उसको 3 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा उस पैसे से उस बाग को फिर से तामीर, उस बाग को फिर से उजागर किया जाए, उस बाग से फिर उस पैसे से उस बाग की फिर देखभाल की जाए, और एक हिस्सा गरीबों में दिया करते थे, और एक हिस्सा अपने लिए रखते थे। 3 हिस्सा करते थे। लेकिन जब बाप मर गया, उनके बेटे के हक में ये बाग आ गया। एक जरूरी ऐलान है, जो हज़रात अभी खाना नहीं खाए हैं, जो होटल का टोकन था जिसका कीमत 60 रुपये था, उसे कम करके 50 रुपये कर दिया गया है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो जाकर 50 रुपये का टोकन कटा कर खाना खा सकते हैं। तो पैसा 3 हिस्सों में तकसीम करते थे उसका बाप। लेकिन जब उसका बाप मर गया, उसके वारिस कौन बने? उनकी औलाद, उनके बेटे ने कहा, ये मेरा अब्बू हम लोगों के लिए कुछ होने ही नहीं दिया, क्या ज़रूरत है गरीबों को देने की, क्या ज़रूरत है फ़कीरों को देने की, हम लोग देंगे ही नहीं। एक काम करते, सुबह सुबह जाएंगे, जितना फल है सब तोड़ के लेके आ जाएंगे। फतवा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून। जैसे उस बाग में चक्कर लगाने वाला चक्कर लगाए, और ये लोग सो ही रहते, बाग पूरे के पूरे उजड़ गए। फास बात कसरीम, बाग पूरे के पूरे उजड़ गए। इन्होंने इरादा किया कि हम सुबह सुबह जाकर उस बाग का फल तोड़ कर लाएंगे। इन्होंने कहा, अनिगदु अला हरसिकुम इन कुंतुम सारिमीन। एक दूसरे को आवाज़ दी, चलो फल तोड़ कर लाएंगे। लेकिन रात ही रात बाग तहस-नहस कर दिए गए। रात ही रात पूरे के पूरे बाग जल गए। ये लोग सुबह निकलते फल तोड़ने के लिए कि हम फल तोड़ कर लाएंगे, अपने घरों में रख देंगे। कोई गरीब गुरबा सुबह होने से पहले नहीं जाएगा, और हम सारे माल के हकदार बन जाएंगे, सारे माल के मालिक बन जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये लोग बात करते करते चले। फंतलक वहुम यतखाफतून। ये लोग चुपके बातें करते हैं और चले जाते हैं, और ये समझते हैं कि हमने तो आज मिस्कीन को काबू में पा लिया। कोई मिस्कीन सुबह होने से पहले दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्ला यदखुलन्नागल यौम अलैकुम मिस्कीन, कोई उस बाग पर नहीं जा पाएगा, और जितना फल होगा, जितना माल होगा, हम सब लाकर अपने घरों में जमा कर देंगे। कोई मिस्कीन इस बाग से नहीं ले पाएगा, कोई गरीब को हक नहीं दिया जाएगा, कोई फकीर को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। और जाकर जब देखते हैं तो देखते हैं कि बाग उजाड़ पड़ा है, बाग वीरान पड़े हैं। सब ये कहते हैं कि क्या बात है कि हम लोग रास्ता भूल गए, क्या बात है कि ये बाग जला दिए गए। आपस में एक दूसरे ने कहा, नहीं बाग हम रास्ता नहीं भूले हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत को फोड़ दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत को फोड़ दिए हैं। अल्लाह ने हमारे किस्मत को बदबख्ती कर दिए हैं। ये हमारी बदकिस्मती की बात है कि हमने अल्लाह की तस्बीह नहीं की, हमने गरीबों को देने में बात नहीं की, हमने उसको मिस्कीन में देने की बात नहीं की। हम ये समझते थे हम किसी गरीब को नहीं देंगे, हम ये समझते थे किसी मिस्किन को नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस बाग को उजाड़ दिया, अल्लाह ने इस बाग को पूरे के पूरे जला दिए। इसलिए इस वाक़यात से पता चलता है, आए मेरे बुजुर्गों और आए मेरे साथियों, और इस मजलिस में बैठे हुए तमाम दोस्तों अहबाब, हमारे बाप की शक्ल में, हमारे भाई की शक्ल में, हमारे उलमा और असातिज़ा की शक्ल में, बहुत असातिज़ा भी मौजूद है इस मजलिस में। अल्लाह के बंदे, दीनदार बंदे इस मजलिस में मौजूद है। अगर आप हलाल तरीके से भी कमाई करते हैं, अगर आप खून पसीने से भी कमाई करते हैं, तो आप एक बात याद रखिए, ये ना सोचिए कि हम उसको हलाल तरीके से खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको हराम तरीके से खर्च करेंगे। ये भी एक तरीके की बुराई है, ये भी एक तरह की, ये गुनाह करने का जरिया है, गुनाह करने के असबाब हैं। अगर आप हलाल तरीके से भी कमाते हैं तो आप हलाल तरीके से खर्च कीजिए। ये नहीं कि आप हलाल तरीके से कमाए और हराम तरीके से खर्च किए। मेरे प्यारे साथियों, जब उन्होंने इरादा किया हम मिस्किन को नहीं देंगे, हम गरीबों को नहीं देंगे, अल्लाह ने उसके बाग को हलाक कर दिए। जब मक्के के अंदर ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला ने मक्के वालों को ये मिसाल बयान की, अरे मक्के वालों, जो लोग सदका को रोकते हो, जो लोग ज़कात को रोकते हो, जो लोग दान व खैरात करने से दूर रहते हो, जो लोग अपने घर में आने वाले साइल को देखकर मुंह बिगाड़ते हो, सुनो तुम्हारे लिए ये नसीहत है। जब उन्होंने ऐसा सोचा, अल्लाह ने उसके बाग को तहस नहस कर दिए। इसलिए आप हलाल कमाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। मैंने कहा था
उस हदीस के अंदर कि अल्लाह के नबी जन्नत में सबसे ज़्यादा किसको देखा? फुकरा। फुकरा से मुराद जो लोग गरीबी हालत में हैं, मांगने वाला नहीं। मांगने वाले लोग आपको बहुत किस्म के मिल जाएंगे, जिनके पास हाथ रहेंगे, जिनके पास पैर रहेंगे, बावजूद वो मांगेंगे। जिनकी स्थिति ख़राब है उनके लिए अल्लाह के नबी ने ये कहा कि उन लोगों को मैंने जन्नत में देखा। और जहन्नम में किसको देखा? औरतों को देखा। मेरी माओ बहनों, इस हदीस को गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी ने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। इसका मतलब ये हदीस हमें और आपको मैसेज दे रही है, आए मर्दों, आए मर्द हजरात, अल्लाह ने कुरान में ये नक्शा खींचा है, मैंने मर्दों के लिए कोई अगर फितना, सबसे बड़ा फितना बाकी रखा, वो हमारी और आपकी औरतें हैं। इसलिए वो हदीस के अंदर फरमाया, दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, ये दुनिया सर सब जो शादाब है, ये दुनिया सर सब जो शादाब है, इस दुनिया के पीछे पड़ने वाले जरा गौर से सुनो। फत्तक़ु दुनिया, दुनिया से बचो, और तकुन निसा, और औरत के फितनों से बचो। इसलिए कि फ़इन्ना अव्वला फितनत बनी इसराइल कानत फिन्निसा, बनी इसराइल में जो फितना फसाद, पहला फितना बरपा हुआ था, वो औरत के सिलसिले में थी। इसलिए मेरी माओ बहनों, आप ज़रा तसब्बुर कीजिए और गौर कीजिए और उस मुस्कान की तरह हो जाइए जिन्होंने इस्लाम की तालीम पाकर, इस्लाम की तरबियत पाकर कुरान और हदीस को सरेआम लाए, मंजर आम लाए और ये सच कर दिखाया कि इस्लाम के मानने वाले किसी से नहीं डरता है। अगर डरता है तो अल्लाह ताला की ज़ात से डरता है। अगर डरता है तो खौफ खुदा उनके दिल में है। अगर डरता है उनके अंदर ईमान की वजह से वो डरता है, अल्लाह के खौफ की वजह से डरता है, उसके अलावा वो किसी से नहीं डरता है। इसलिए मुस्कान ने ये साबित कर दिया, हमारी माँ बहनों, वो आपकी तरह एक बहन है, वो आपकी तरह एक माँ है, वो आपकी तरह वो किसी की बहन है, आप ही की तरह है। अगर आपको भी ज़रूरी है कि आप कुरान की तालीम को आम में लाइए। और मुसलमानों, आपको मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चियों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं, ये आपके लिए बदबख्ती की बात है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग तो ये कहते हैं हमारी माँ बहनें पढ़कर क्या करेगी, हमारी लड़कियाँ पढ़कर क्या करेगी, दूसरे के घर में जाकर वही उनको गोबर उठाना पड़ेंगे। ये गलत सोचें। अल्लाह के नबी ने कहा सही तालीम और तरबियत देने पर जन्नत की बशारत सुनाए, खुशखबरी दी है। आप अपनी औरतों को, आप अपनी बच्चियों को, आप अपनी लड़कियों को तालीम दीजिए ताकि आप जन्नत की बशारत मिल पाए, आप जन्नत के अंदर आपका दाखिला हो सके। इसलिए आप अपनी बेटियों को, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। और जब तक ये तालीम आप नहीं दीजिएगा, इस्लाम के शान और शौकत मिट जाएंगे। इसलिए कि हमारे हदीस चीख कर कहती है, जब तुम्हारे सामने जालिम बादशाह, जब तुम्हारे सामने कोई अत्याचार करने वाला अय्याश तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें अल्लाह के खौफ खाकर उसके अलावा किसी से डरना नहीं है और तुम्हें भी उससे मुकाबला करना है। अगर तुम्हारे पास 100 तादाद में लोग आ जाएं, 100 तलवारें तुम्हारे सामने खड़ा करें, फिर भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आए और अल्लाह के नबी की तलवार ऊपर में रखी हुई थी। आप जब सो रहे थे, वो आदमी आए, तलवार उठाया और आपको फरमाया कि मैं यमनऊ का मिन्नी, मुझसे आपको कौन बचाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह, किसी का नाम नहीं लिया, डर की वजह से नहीं कहा कि आप बचाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो बचाएंगे, नाम अगर किसी का लिया तो अल्लाह का। मेरे प्यारे साथियों, तलवार लेके खड़े हैं, तलवार उनके सामने है, बावजूद अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अगर हमारे अंदर इस्लाम की तालीम आ जाए, इस्लाम की तालीम हो, तो हम भी किसी से डरने वाले नहीं है। और वो बादशाह औरंगजेब के ज़माने में एक हिंदू लड़की शकुंतला, उसका बाप का नाम राम लाला, उसके बाप का नाम राम लाला, और वो एक पंडित की लड़की थी। जब उसकी इज्जत व असमत के साथ खेलना चाहा, एक जालिम अय्याश बादशाह औरंगजेब के पास वो लड़की गई और उसने अपनी फरियाद की कि औरंगजेब, ऐसी बात है, एक बादशाह हमारे जिस्म से खेलना चाहता है। औरंगजेब ने कहा जाओ बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। औरंगजेब आए और उस जालिम बादशाह को बुलाया, वो अय्याश बादशाह को बुलाया, और अय्याश बादशाह को बुलाने के बाद क्या सजा दी, हाथी के पैर में उसको बांध दे। उसके बाद हाथी को दौड़ाया गया और उन अय्याश और रेप करने वाले, गलत काम करने वाले उस जालिम बादशाह को सजा दी गई। औरंगजेब मुसलमान थे, अगर वो चाहते, वो शकुंतला हिंदू थी, लेकिन उसने नहीं देखा कि ये हिंदू है, बल्कि ये देखा कि हमारे ये देश की बेटी है। ये मोहब्बत और प्यार होना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर कोई इंसाफ के मामले में अगर हिंदू के खिलाफ फैसला आता है,
अगर कोई मुसलमान करता है उस मुसलमान के ऊपर UAPA लगाइए। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ फैसला करता है उसके तहत आप UAPA लगाइए। ये संविधान इजाज़त देते हैं और संविधान इस बात की भी इजाज़त देते हैं कि सबको धर्म के अनुसार इबादत करने की परमिशन है, इजाज़त है। धारा 25 से लेकर 28 के अंदर ये क्लियर कहा है। हाई कोर्ट में ये फैसला सुनाया, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए कोई औरत हिजाब पहनकर ना जाए। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि वो हिजाब पहनकर उस वक्त तक उस कॉलेज में ना जाए जब तक फैसला ना आ जाए, क्योंकि यही मुद्दा लेकर फिर हमें बदनाम किए जाएंगे। और आपको एक आखिरी वाकया सुना रहा हूँ। एक बगुले थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो मतलब नदी में कूद कर तैर कर कोई मछली खा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक तदबीर चली, चाल चली। क्या चली? एक केकड़ा से मुलाकात की और केकड़ा से कहा कि ऐ केकड़ा, हम तो एक बात सुने हैं कि कोई शिकारी यहाँ से गुजर रहे थे और हम सुन रहे थे कि इस तालाब के अंदर जितनी मछलियाँ हैं वो मारकर खा जाएंगे, जाल लेके आएंगे और सबको मारकर खा जाएंगे। अब हम एक मशवरा देते हैं। क्या मशवरा देते हैं? सुनो, एक काम करो, वहाँ पे एक बड़ा बिल है, बड़ा तालाब है, हम वहाँ तुम लोगों को ले जाकर छोड़ देंगे, तुम लोग आराम से बच जाओगे, वहाँ ज़्यादा पानी है, कोई शिकारी शिकार के लिए नहीं आएंगे। वो चाल चल रहा था, वो उनके अंदर चाल चली जा रही थी मेरे प्यारे साथियों। फिर उन्होंने क्या किया, एक मछली को आज उठाया, फिर लेके गया और दूसरी जगह में खा लिया, फिर दूसरे मछली को उठाया, फिर दूसरी जगह में खा लिया। आखिर में केकड़ा को जब लेकर गए और केकड़ा ने देखा ऊपर से हड्डियां पड़ी है, मछलियों की हड्डियां पड़ी है, तब केकड़ा ने देखा हमारी मछलियों को इन्होंने खा गया है। अब हम चाहे इनको थोड़ी ही वार कर पाए, अब एक थप्पड़ ही मार पाए, हमारी जान बिल्कुल करीब है, हमारी मौत करीब है। अगर हम एक थप्पड़ मार कर बदला ले पाते हैं तो हम एक थप्पड़ ही मारेंगे। उन्होंने अपने चोंच से, उन्होंने अपने चेहरे से, अपने नोक से उसको ऐसा काटा, काटने के बाद वो बगुला मर गए। इसलिए जब आप देखेंगे कि हमारी मौत करीब है, चाहे अगर आप किसी को एक थप्पड़ ही मार पाए, इसके अब ये जुमला अगर सुन ले तो कहेंगे कि इनके बारे में कोई FIR दर्ज कराइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें थी। इंशाअल्लाह हलाल व हराम के सिलसिले में कहीं दूसरी तकरीर में हम एक तरफ से बयान करेंगे किस जानवर का गोश्त हलाल है, किस जानवर को कब खाया जाए, किसकी सवारी करना जायज़ है, किस जानवर का दूध हलाल है। इंशाअल्लाह इसके पर टॉपिक इंशाअल्लाह आएगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।